Welcome back to the chapter 1, class 12 mathematics, relation and function. Yesterday we have discussed about the different types of relations. Different types of relation means empty relations, universal relations, reflexive relations, symmetric relations and transitive relations. These are the 5 types of relations we have discussed here. The very difficult things, it's moderate we can speak here, कि most of the student एक चीज को experience करते हैं कि while writing the answer of the question they just have a difficulty in writing the answer of these questions. Then how can you solve this problem? उसको कैसे solve करेंगे आप? Is it here? So take a revision for that. Like that. I given the yesterday the assignment from the text study material. I think you would have all the study materials, a hard copy of that study material, and you will prepare from that. Is it here? So look that here. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, or transitive. What the relations is given here, that relation R in set A is 1, 2, 3 up to 14 defined as this here. So yesterday I told you a method of writing the solution. वो ये थी कि like that here. What the question is? The question is here. The question is it is this. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, or transitive. So what is the method of solving this question here? Here I'm telling to write down the method of writing the solutions. Relation R, since given a relation R is given as R be the set of all xy, where 3x minus y is equal to 0. Is it here? And where from the x and y will come here, that where x and y be the member of A. What is the set A here given? A relation R on A, a relation R from A to A. इसे कहते हैं relation on A. इसको ही relation on A कहते हैं. Relation on A. Relation on A means the domain of the relation you will take from the A, and the range or the images which will come, they also will be taken from A. वो भी A से लिए जाएंगे. और ऐसे कुछ members जो इसमें होंगे, is it here? They will not have the pre-image, so will not be as a order pair the member of R. Is it here? So this is your conditions of a relation. So the difficulty view of writing the solution is कि सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए? First you have to note down the relation. सबसे पहले relation को आप note करिए कि a relation R on A is given as. So here you will write is given as. The relation is given as. It is given as. Is it here? So where is that relation? What is the set here? Please tell me. Set is what? All the members of the set are here. ये members हैं उसके. From 1 to 14 we have taken here this. All the members are from 1 to 14. Is it here? 1 to 14 we are taking. Is it? Now look that. 1 to 14. Since A is 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot up to 14. So what is the value of writing? What is the way of writing that? We have to prove reflexivity. So first of all we'll prove the reflexivity. अब reflexivity को कैसे prove करेंगे? How will you prove the reflexivity? So we are proving reflexivity. Reflexivity means let here 1 1
रिफ्लेक्सिविटी का मतलब जो डोमेन का मेंबर है उसी की जैसी इमेज है, जैसा डोमेन वैसे ही image. Is it here? That is 1 1 belongs to. So we'll take here that let take one member here. What is the one member here? 1. So obviously we'll take here that all A cross A. A cross A from 1 to 14 we will take here that. कितने members होंगे? How many members will be there in a order pair in a cross Cartesian product of the A cross A? One will associated with it itself, one will associated with 2, one will associated with 3, but the condition of the relation has been given here, that ये condition है. Is it here? So we'll see that here. If you will take here 1 belongs to, you will take here that let for 1, yeah, here you will write for x is equal to 1, x is equal to 1. Tell please what the value of y will come here, that here. So y is equal to 3x. From this condition y is equal to 3x. So for x is equal to 1, what about y? So here y is equal to 3 into 1, that is what? 3 it is. Is it here? So y you will write here. Similarly for x is equal to 2, what is the value of y? The value of y again will come here 3 into 2 and here will come 7. So under this relationship, the relationship is what here? Y is equal to 3x. Tell please. So in place of x, when you will put 1 2 3 4 5 6, अगर आप 1 2 3 4 5 6 put करेंगे any member from that here in place of this, तो क्या y के place पर वापस वो खुद ही आएगा for the reflexive relation? The answer is no, it will not come here. So what we can speak here that, तो इसका मतलब ये हुआ, तो therefore here you will write 1 1 1 1 does not belongs to R. 1 1 does not belongs to R. Not only 1, 2 2 does not belongs to R. 2 2 भी इसमें belong नहीं करेगा. Is it here? Means under this relation ऐसा कोई सेट नहीं होगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेते हुए. Is it here? जो इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा. Is it here? The answer is what? Therefore, what you will write here? R is not reflexive. That is, relation is not reflexive or not reflexive. R is not reflexive. Is it here? This is the way of writing the solution. ये जो स्ट्रैटेजी है राइटिंग सॉल्यूशंस की, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. Is it here? Now second. The second is symmetric. How will you write symmetric? Symmetric. What is symmetric? For symmetric, let you will take here this 1 2, suppose that here आपने 1 2 को लिया, means both the member as order pair you will select them from relation from the member A से ही select करेंगे आप all the member here. ये जो A सेट है कितने members इसके पास please tell me? उनमें से ही आप किसी एक member को यहाँ पर select करेंगे. Is it here? So let we are supposing 1 2 belongs to R. 1 2 belongs to R. That is 1 2 belongs to R का मतलब 1 और 2 as a association will follow this relation. तो क्या हमें 1 2 को लेना चाहिए? 1 3 क्यों नहीं? तो 1 2 we cannot take here. Why we cannot 1 2? Because sir 1 का relation तो 3 से, तो obviously we cannot take 2 with 1. So here the one mistake generally the student does here, that what 1 3, let 1 3 belongs to what here? R. का मतलब क्या है? What is the meaning of that is? That is means in y in place of x if you will put here the value will come 3. That is 1 3 belongs to, got it or not? So if I will write here that here, so does 3 1 belongs to? So for here you will write for x is equal to 3. Is it here? Suppose that 3 1 means what? When x is equal to 3 implies that what will here is? So y is equal to what will come? Here it is 3 and that what must come here is 9. It means क्या हुआ कि जब आपने x के प्लेस पे 1 रखा तो 3 is coming here, but when in place of x 3 you will put, that what must come? 1 आना चाहिए. Is it here? But 1 is not coming here. Is it here? If 1 is not coming, that is what is the meaning of that? Therefore 3 1 order pair does not belongs to R. इसका मतलब इस रिलेशनशिप में 3 1 बिलोंग नहीं करता. किसके लिए? 1 3 के लिए. तो that's why 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R. It means that what? It means that therefore R is
R is not symmetric. The word symmetric. Symmetric, it's like what? Symmetric means commutative, like 2 3 3 2 under certain relation AB belonging to R. Is it or not? So BA must belong to the same relation. Then we speak here कि ऐसा relation symmetric होगा. Is it or not? Now come on please. Third is what? The third is transitive. Transitive. What the transitive? Transitive here you will 1 related with 3, or we'll take here the sum 1 or next 3 related with, obviously you will take here let 1 3 because 1 related with 3 belongs to what? R, that is, or also you will write here this. Yeah, here you will write for 1 3 pair. Yeah, 1 के लिए ले लेंगे अपन. Is it here where x is equal to 1 implies that y is equal to what? Obviously it is coming 3. For here you will ax is equal to what? The next is 1 3 x 3. Then what will give me that? Y is equal to 3 into 3. It will give you what? 9. That is what? 1 3 belongs to comma 3 9 belongs to what? R. क्योंकि ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं. मीन्स 1 रखने पे 3 आता है और 3 रखने पे 9 आता है. तो इन दोनों से क्या प्रूव करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूव? आपको प्रूव करना है कि 1 9 will also belongs to that here. So here you will take here again for 1 belongs to R. For 1 belongs to R. Sorry, 1 belong for x is equal to 1 implies that what is the value of y? Here it is 3 into 1. That is what here again 3 means 1 9 से associated नहीं है. So you will write here that therefore 1 3 does not belongs to R. 1 3 does not belongs to R. So what you will write here? Here R is not transitive. मतलब R transitive नहीं है. R is not transitive. So you had seen here that कि relation R ना यहाँ पर reflexive है, ना commutative है, that is symmetric है, और ना यहाँ transitive है. Is it here? The 3 cases we have given here that. Now let's come on please. अब एक अगला क्वेश्चन. Is it? What the next question? The question next. Relation R in the set. So determine whether each of the following are reflexive, symmetric and transitive. We have to determine कि वो reflexive है, transitive है या फिर symmetric है. First we have discussed here. Similarly, you will prove for that here. Relation R in the set natural numbers defined as R is the set of all x y where y is x plus 1. और here x is what? X is similarly here you will write. वही technique होगी. Same method you will follow with that. Clear? What the relation is given here? Since y is equal to x plus 5, is it? So x, what you can take x here? Here it is saying for x is equal to, here you will write for x is less than 4. So for x is less than 4 means what? And here x is natural. मतलब natural भी है और less than 4 है. So what the value of x you can take? The value of x you can take 1, 2, 3 and not 4. 1, 2, 3 you can take. X is equal to 1, 2 and 3. So for x1, what the value of y will come here? Obviously 1 is associated with, if you will put here 1, then y will come 6. So 1 is 6 here. And what the member we are taking? Obviously here 1, 2. It means that 1, 1 does not belongs to. Here you will write for x is equal to 1. X is equal to 1. Therefore y is equal to what? X plus 5, that is 1 plus
5, what is coming? It is 6 is coming right now. So you will write here 1 1 1 1 या फिर 2 2 similarly, that is does not belongs to R. 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R. तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. Similarly for what next is second commutative या symmetric. Symmetrically क्या करेंगे? Same here you will do that here. In place of x you will put 1. तो 1 के प्लेस पे in place of x if you put 1, then what will come? Y will come. यहाँ y आएगा. Y is what coming? 6 is coming. Y is it? But if in the place of x if you will put 6, whether 1 will come here? क्या 1 आएगा? The answer it will not come here. The 1 will not come. तो ये relation symmetric भी नहीं है. अब transitive, what the transitive है? तो 1 is coming with like that here 1 or 6 means 1 in place of 1 when you put 1 1 or 2 1 2 you can take this, but 1 2 क्यों लेंगे? ऐसे दो मेंबर्स जो x रखने पे y लेकर के आएंगे, इज इट हियर? और वो मेंबर्स ऐसे ही होंगे, इज इट? तो फॉर x is equal to 1, तो 1 किससे एसोसिएटेड हुआ अंडर दिस रिलेशन? अंडर दिस रिलेशन 1 is associated with 6, is it here? So you will suppose here let 1 6 belongs to what here? R. What is the meaning of that here? का मतलब ये हुआ कि x is equal to 1 लेंगे, implies that y is equal to, what will y is equal to? Y is x plus 5, that is 1 plus 5, that is what here? 6. इसलिए 1 6 belongs to R. अब if you will take here this x is equal to 6, then what is the next here? So y is equal to in place of the 6 or 5, what next will be? It is 11. So see that here, therefore that is 1 6 belongs to comma and 6 11 belongs to R. both lying here, that बाहर नहीं होना चाहिए, is it here? belongs to R. अब इससे प्रूव करना है कि 1 11 भी बिलोंग करेगा कि नहीं. तो इन प्लेस ऑफ 1 व्हाट यू विल पुट हियर? 1 के प्लेस पर आप क्या रखेंगे? 1 के प्लेस पर आप 1 के प्लेस पर इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट 1, तो इसके प्लेस पर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए, और दैट विल नॉट कम हियर. दिस इट मींस दिस इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव. तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इज इट हियर? नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन R इन द Z. बट गो विद दैट हियर. यहां बहुत ध्यान से समझिए आप प्लीज, नेचुरल पर खेल चल रहा है पूरा, इज इट? अब थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज दैट कि Z इंटीजर. अब x यहां पर हियर द x इज नॉट नेचुरल. अब x यहां पर इंटीजर है. इंटीजर मींस इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, इज इट हियर? सो x minus y is integer. Since x minus y is what? An integer. n यहां पे एक इंटीजर आएगा, इंटीजर where n is z, ऐसी कोई वैल्यू आएगी, इज इट हियर? तो वी हैव टू प्रूव दैट हियर एक्स वाई इज एन इंटीजर. सब इंटीजर मिल गया, एक कोई ना कोई इंटीजर आएगा. तो रिलेशन आर इन द सेट कि एक्स वाई इज इंटीजर. इंटीजर मींस कुछ भी आए, जैसे लाइक दैट एक्स के प्लेस पर आप क्या लेंगे? एक्स के प्लेस पर अगर आप एक इंटीजर लेंगे, पी इज इंटीजर, इज दैट क्लियर? और वाई के प्लेस पे क्या लेंगे? क्यू एक इंटीजर, एग्जैक्टली. तो देयरफॉर पी माइनस क्यू व्हाट विल कम हियर? पी माइनस क्यू इज इक्वल टू व्हाट विल कम हियर? एक कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो क्या होगी? इज एन इंटीजर. एक इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर होगा, इज इट? तो दैट इट्स फॉलोइंग हियर दैट कि x माइनस वाई दैट इज p माइनस क्यू मिलकर के एक इंटीजर लाते हैं, इज इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फॉलो कर रहा है रिलेशन को, इज इट? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट इट इज दैट हियर. सो हाउ विल यू राइट द x माइनस वाई इज इंटीजर? तो इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, देखिए प्लीज. x माइनस वाई इज इंटीजर. लुक, द क्वेश्चन इज since what is that here? Relation R, yeah, here you will write here R on what is that? Z to Z. R on Z to Z is given. But how will we read it here? इसे पढ़ेंगे कैसे आप? You will read it here कि relation on Z, relation on integer is given. तो relation on n is given as given as that is what here? R is what is that? Set of all x y here where x minus y is what here? Is integer. This is integer. और x y भी integer है. तो we have to prove reflexive or something else. So you will suppose here reflexive. Reflexive. पहला reflexive check करिए. Is it here? तो what the reflexive? So you will suppose here let x belongs to R. आपने suppose तो कर लिया. तो क्या वाकई ही x रखने पे x आएगा? We'll discuss here that. चलिए start करते हैं. For x is equal to z, an integer, एक इंटीजर है,
एन इंटीजर, एक इंटीजर है। कौन एक इंटीजर है? प्लीज टेल मी। x एक इंटीजर है, तो हियर व्हाट विल हियर दैट, तो x माइनस x इज इक्वल टू व्हाट इज कमिंग हियर 0, क्योंकि y भी वही आना चाहिए। तो x x ये भी सेम और ये भी सेम, x x, तो इज कमिंग हियर 0 का क्या मतलब है? क्या इज एन इंटीजर? इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। वही तो रिलेशन है कि x माइनस वाई इंटीजर आएगा। तो x और y के प्लेस पे इक्वल वैल्यू वी हैव टेकन, तो इक्वल वैल्यू टेकन करने पे एक इंटीजर आया, मतलब x और y को इक्वल लेने पर वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट हियर, देयरफॉर यू विल राइट हियर x, x belongs to R. Is it here? So what you will write, therefore R is reflexive. This is R is reflexive. Is it? Now second, symmetric. Symmetric. What is symmetric? Symmetric क्या है? तो symmetric is that for x or common please, x और y symmetric is what? हाँ चले जाइए फिर हाँ हाँ इस सब चले, उसके पीछे चले जाओ आराम से। हाँ हाँ चल जाओ, सही तो जा रहे हैं अपनी सीट पे। जाओ बैठो, हाँ बैठो। इज इट? वहां से स्टार्ट कर लियो। नाउ लुक प्लीज, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, now let's come up with reflexive, symmetric. The third is what? Transitive. We are to prove here that transitive, एक बार चीजों को देखें फिर से। Is it here? We have proved here relation, यहां relation given है, what the relation is there? The question is, we are solving fourth question. Relation R in the Z of all integers defined as R be the relation of x and y where x minus y integer, मतलब x और y की प्लेस पे जब when you will take equal values, जब आप equal values लेंगे तो equal value लेने पर एक इंटीजर आएगा, तो क्या वाकई आएगा इंटीजर? यस, हाँ, 0 is an integer. Is it here? So we have to prove कि ये एक relation, means we have to prove the type of relation. Is it here? तो फर्स्ट वी हैव प्रूव हियर रिफ्लेक्सिव, क्या वो रिफ्लेक्सिव है? तो फॉर x इज इक्वल टू एक इंटीजर, एन इंटीजर इट इज दिस, तो x माइनस एक्स विल गिव यू 0, क्या 0 एक इंटीजर है? यस। तो हियर यू विल राइट कि x बिलोंग करता है R में, मतलब x अगर बराबर वैल्यू लेते हैं तो इट इज फॉलोइंग द रिलेशन, दैट इज x R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ यू विल सपोज दैट x, y बिलोंग्स टू z, मतलब दो इंटीजर लिया आपने, x, y, टू इंटीजर्स वी हैव टेकन, और दैट इज क्या कि x y बिलोंग्स टू R, का मतलब क्या है कि x और y एक ऐसा पेयर है इंटीजर का जो इस रिलेशन को फॉलो करता है। हमने ये मान लिया, वी हैव सपोज दैट ये, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन फॉलो कर रहा है, मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ x माइनस वाई इज इंटीजर, तो क्या सपोज कर लीजिए आप इसे, n इंटीजर, हियर यू राइट इट दिस एज एन इंटीजर। Is it or not? Now next is, तो we have to prove x y बिलोंग करता है R में, इससे क्या प्रूव करना है आपको कि y x भी बिलोंग करेगा, तो इससे क्या, इससे y x लाएंगे तो क्या होगा, तो here you will write since x minus y is equal to n, तो आप इससे क्या y minus x ला सकते हैं? Obviously we can bring this, तो what you will write here, तो आप इसे y minus x कर दीजिए, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, या फिर y माइनस एक्स, हियर यू विल राइट पहले y फिर x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसे, और implies that what next will be it is y minus x is equal to minus of n, तो minus of n क्या है, एक इंटीजर है, yes it is integer, so here you will write an integer, again you will write an integer, मतलब ये भी एक इंटीजर आ गया, an integer is coming here, तो what the conclusion yours, क्या कंक्लूजन हुआ आपका? The conclusion is x minus y, ठीक है, की वजह से x minus y belongs to R implies that yx also belongs to R, का मतलब क्या हुआ, तो therefore what is that here, और ये क्या for क्या बोलेंगे, for all xy p
इंटीजर, सभी एक्स वाई इंटीजर के लिए ऐसा है, इज इट हियर? तो आर इज क्या? सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बोलो समझ गया कि नहीं? अब थर्ड इज व्हाट? आर इज वी हैव टू प्रूव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे आप? ट्रांजिटिव, व्हाट इज द वे टू राइट डाउन ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू राइट ट्रांजिटिव? सेम वही कहानी हो गया, 3 इंटीजर्स यू विल टेक हियर दैट। यहां आप सपोज करेंगे लेट x, y, z, आर क्या? इंटीजर्स, है ना? आर इंटीजर्स, ठीक है? सच दैट इस तरह से, कैसे इस तरह से बताइए कि एक्स वाई बिलोंग करता है, एक्स वाई बिलोंग्स व्हाट? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स व्हाट? x minus y is suppose n, you will write here n integer, ये एक इंटीजर है, is it here? और y z belongs to r का मतलब क्या होगा? y minus z is equal to m, एक वैल्यू है, what you will write here? n इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। अब इन दोनों से आपको इंप्लीकेशन लाना है, रिजल्ट लाना है, किसके किसके बीच में रिलेशन? x और z के बीच में। तो दिस इज योर स्किल, बाकी तो सब आपने नोट किया क्वेश्चन से, इज इट हियर? सो हियर व्हाट? एडिंग देम, तो इन्हें एडजस्ट करिए, एडिंग देम, व्हाट विल हियर? एडिंग देम, ये y व्हाट विल कैंसिल होगा, एडिंग देम, सो एडिंग देम you will have x minus y plus y minus z is equal to n plus m, तो m plus m means n एक इंटीजर, m इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर अगेन इंटीजर, एक नया इंटीजर p, इज इट? और हियर इट विल बी x माइनस z, तो ये वही फॉर्मेट है, इज इट? तो n इंटीजर, हियर यू विल राइट n इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर है, इज इट? देयरफॉर व्हाट? r इज क्या? ट्रांजिटिव, इट मींस r एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, r इज ट्रांजिटिव। तो इफ r इज सिमेट्रिक, r is reflexive, symmetric and transitive, then r is also transitive. r is reflexive, r is, yes, r is symmetric, r is transitive, then r is equivalence, is that the answer is वो। तो इस चैप्टर में what is the difficulty? Solution writing is it, so you just have to go with the practice, is it here? चलिए let's come on please। Here it is. Similarly, the question number 5th can also be done here. Relation are in the set of a human beings in a town, particular time is given by. बन जाएगा ये question, right? R set of all x and y work at the same place. तो x belongs to, yes, कि वो और वो खुद दोनों both are working, वो और उसकी इमेज both are। अगर मैन फैक्ट्री में काम कर रहा तो इमेज कहाँ होगी उसकी? फैक्ट्रीज में होगी, ऐसा थोड़ी कि वो फैक्ट्री में है मैन तो इमेज कहाँ होगी उसकी? घर में होगी। बोले छोड़ के आया हूँ घर में, किसको? इमेज को, ठीक है, अपनी इमेज साथ लेके चलो, इज इट और नॉट? तो डेफिनेटली दिस विल बी व्हाट? रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये एक्स और वाई, मतलब राम और मोहन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मोहन और राम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? सर एक ही बात है। तो इज फर्स्ट ईयर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक? यस। आप ट्रांजिटिव ले लेते हैं, चलिए, इज इट ईयर? राम और मोहन वर्किंग इन फैक्ट्री, मोहन और डेनियल ले लीजिए, श्याम नहीं, डेनियल को लाते हैं, चलिए, इज इट ईयर? है ना भाई? अब देखिए देश दूसरे देशों से कांटेक्ट कर रहा है तो डेनियल भी आएगा ना यूएसए से, है कि नहीं? तभी तो भारत में व्यापार फैलाएगा, है कि नहीं? और फिर भारत को लूटेगा। तो एक्स वाई, राम और मोहन वर्किंग एट द फैक्ट्री, और मोहन और डेनियल वर्किंग एट द फैक्ट्री। तो क्या राम और डेनियल भी काम कर रहे हैं? यस सर। तो दिस इज ऑल्सो, तो कैन यू राइट दिस और नॉट हियर? The difficulty with writing the solution, I expect you can solve that here. So take a minute 5 to solve that question, all that here. As exactly taller than, जैसे x is exactly 7 cm taller than y, तो x y से 7 ज्यादा है, is it here? फिर y z से 7 ज्यादा है, तो x z से कितना ज्यादा होगा? 14 हो गया ना, is it here? लेकिन 7 ज्यादा नहीं है, तो क्या ये टॉलर तो है, बट 14/14 द थर्ड वन है। तो अगर ये हटा दूं मैं 7 सेंटीमीटर, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, लेकिन 7 सेंटीमीटर ये क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा,
इज इट? नहीं, लेकिन सिमेट्रिक देखिए, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, तो क्या और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा? क्या हर कोई अपने आप से ऊंचा होता है क्या? हर्ष इज टॉलर देन इटसेल्फ, हर्ष खुद से ऊंचा है। क्या बात हुई है? हर्ष अपने आप के बराबर है ना, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, इज इट? हर्ष इज टॉलर देन, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंस, है कि नहीं? इज इट? कितना? 7 सेंटीमीटर, तो क्या प्रिंस इज टॉलर देन हर्ष होगा? ऑब्वियसली शॉर्टर देन हो गया ना, रिलेशन ही चेंज हो गया। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना तो ये, बट इसको आइडियोलॉजी का मतलब एक स्कीमेटिक वे में आप इसे लिखेंगे। इज इट? चलिए, इट्स ओवर दैट। हियर क्वेश्चन नंबर 2 यस्टरडे आई गेव यू, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? बन जाएगा, लिखते हैं सब। आप लोग वर्क नहीं किए क्या एक भी? अच्छा, ओके 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 ओके। शो दैट द रिलेशन आर in the set R of real number defined as R relation AB where A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। करेंगे? कैसे करेंगे देखिए, AA तो वही कॉन्सेप्ट है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू, तो टेल प्लीज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर के, तो A एक वैल्यू है सपोज दैट हियर, तो क्या A वैल्यू और A इज व्हाट, कुछ कह रहा है A के बारे में? ऑब्वियसली एक रिलेशन है रियल नंबर से, ये रियल नंबर है, तो कोई भी एक रियल नंबर लीजिए प्लीज, लाइक दैट। कौन सा रियल नंबर ले लिया अपन ने? जैसे 1.1, तो 1.1 क्या अपने आप के स्क्वायर, देखिए ना प्लीज, a और लेस देन a स्क्वायर, इज इट पॉसिबल फॉर दैट हियर? ऑब्वियसली। तो हाउ विल यू राइट डाउन द सॉल्यूशन? चलिए लिखिए, कैसे लिखेंगे आप इसको। तो सबसे पहले टेक्निक सीख लीजिए लिखने की, लिखिए प्लीज। सिंस अ रिलेशन, मेथड ऑफ राइटिंग, since a relation R on R, ये R on R का मतलब समझेंगे, 3 R, एक से R नहीं है, आई थिंक ये रिलेशन है, और ये क्या है? दिस इज योर व्हाट, रियल नंबर सेट, अ रिलेशन ऑन रियल, अ रिलेशन ऑन रियल इज गिवन एज, कैसे देते हैं इस रिलेशन को? is given as कि R is equal to set of all what? set of all real ना क्या था रिलेशन? सर वो a स्क्वायर जो एक नंबर था AB, A less than, is it here such that equal to B exactly, तो AB is it here where A is less than equal to B square for A comma B be the real number। बोलो समझ गए कि नहीं? ये रियल नंबर, इज इट? तो वी हैव टू प्रूव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, आई होप बन जाएगा आपको। तो व्हाट यू विल राइट फॉर, तो रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करिए, रिफ्लेक्सिविटी करिए स्टार्ट, रिफ्लेक्सिविटी चेक। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे आप? तो हियर यू विल टेक क्या कि फॉर A बिलोंग्स टू R, ये एक रियल नंबर है, इज इट हियर? रियल नंबर है, तो इम्प्लाइज दैट इज क्या होगा कि A ये इस ऐसा कुछ होगा, इज नॉट इक्वल टू दैट, वो अपने आप के स्क्वायर के इक्वल लेस देन ही होगा, नहीं होगा, इज इट हियर? तो लेस देन भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, इज इट हियर? तो फॉर A रियल, सभी रियल के लिए ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ था? देयरफॉर AA व्हाट इज दैट हियर? डज नॉट बिलोंग्स टू, तो सीधा लिखेंगे AA नॉट द मेंबर ऑफ R, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहे इस रिलेशन को, तो देयरफॉर R इज व्हाट? नॉट सिमेट्रिक ना, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप पहले इसको पहचानेंगे, एक्चुअली में किसको पहचानेंगे आप? इज इट हियर? नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इज इट हियर? व्हाट यू विल राइट सिमेट्रिक में? आप ए बी सपोज कर लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू, लेट यू विल सपोज, ऐसा मानते कि फॉलो कर रहे हैं, इज इट? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दैट कि हाँ, का मतलब क्या? मीनिंग दैट कि ए इज लेस देन, इज इट हियर? बी का स्क्वायर, या फिर यही ना कॉन्सेप्ट हमारा, ए लेस देन बी स्क्वायर, मतलब बी के स्क्वायर से ए क्या है? कम है, या इक्वल टू, वी कैन सपोज दैट हियर, ऐसा कुछ नंबर या लेस देन, ऐसा कोई नंबर हो सकते हैं कि नहीं? हाँ सर हो सकते हैं, डेमो देख लीजिए प्लीज। जस्ट लाइक दैट हियर 1 और 2 को ले सकते हैं आप, इज इट हियर? तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1? 4,
तो ऑब्वियसली 1 से वो बड़ा है, इज इट? तो इम्प्लाइज दैट, इससे आप b के प्लेस पे ही रखो, तो व्हाट विल यू दिस कि b इज नेवर इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा, इज इट? या इट इज नॉट ट्रू दैट हियर, तो देयरफॉर यू विल राइट हियर a comma b, therefore ba does not belongs to R. So what is that here? So R is not symmetric. R symmetric नहीं। अब तीसरा क्या लिखेंगे आप? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को देखिए प्लीज, क्या ट्रांजिटिव में क्या होगा? ए बी, सेम हियर यू विल राइट ट्रांजिटिव। व्हाट यू विल राइट इन ट्रांजिटिव? ए, ये सपोज करेंगे 3 पेयर्स यू विल टेक हियर, लेट ए बी बिलोंग्स टू व्हाट? ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। आपने ऐसा सपोज कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ दैट वाज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब क्या हुआ? ए बी, ए लेस देन बी स्क्वायर, इज इट हियर? एंड बी लेस देन सी स्क्वायर, ऐसा सपोज है। तो क्या वाकई ये इससे शॉर्टर होगा? ऐसा होगा? विल बी दैट हियर, ऑफ कोर्स इट मे बी हैपन दिस हियर। तो इसका मतलब ए लेस देन बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको अपन? सॉरी, ए लेस देन सी स्क्वायर, कैन वी राइट दिस हियर? यस सर, हम लिख सकते हैं, लेकिन रियल के लिए ट्रू नहीं होगा ये। दिस इज नॉट ट्रू फॉर रियल, एनी रियल नंबर के लिए होगा, सम रियल नंबर इट विल बी देयर। अगर आप इसे इंटीजर कर दें, ये रियल है, याद रखिएगा प्लीज। हियर यू विल राइट a कॉमा बी सी आर व्हाट हियर? रियल। ये रियल्स हैं सारे के सारे, ए बी सी, तो रियल नंबर के लिए होगा ये। रैंडम नंबर ले लिए, नेचुरल सारे पॉजिटिव के लिए फॉलो करेगा, बट ऑल रियल के लिए फॉलो नहीं करेगा। ऑल रियल को फॉलो नहीं करेगा। बट व्हाट द क्वेश्चन सेज हियर दैट, क्वेश्चन में क्या कहता है ये? रियल नंबर, क्वेश्चन में क्लियरली अपीयरिंग है कि आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज, राइट नाउ, कि रियल नंबर क्लियर। अगर मैं इस लाइन को चेंज कर दूं, इफ आई विल चेंज दिस लाइन, वेयर इज दैट? ये आर ऑफ रियल नंबर्स। यहां मैं क्या कह दूं अब कि x बिलोंग्स टू, मतलब ये इंटीजर हो जाएगा या पॉजिटिव इंटीजर, तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, इज इट हियर? तो फॉर रियल नंबर इट विल नॉट बी। एन एग्जांपल, व्हाट इज एन एग्जांपल फॉर दैट? तो रियल के लिए प्रूफ नहीं होगा ये। कैसे रियल के लिए प्रूफ नहीं होगा? तो इज नॉट ट्रू, यहां लिखेंगे इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। किसके लिए? फॉर, इज नॉट ट्रू फॉर व्हाट? फॉर a कॉमा b कॉमा c b रियल, इसके लिए सच नहीं होगा, इट्स नॉट ट्रू। समझ गए कि नहीं? बट इफ आई विल चेंज द क्वेश्चन देन इट विल बी ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इज इट हियर? ना तो ये ट्रांजिटिव है, इज नॉट ट्रू, इज इट हियर? तो ये दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट। अब मैं ऐसा भी लिख सकता था इसको, a इज नॉट लेस देन इक्वल टू, लेकिन स्टूडेंट सीधा सीधा कहेगा सर देखिए 1 और 2 लिया हमने, इज इट हियर? का मतलब क्या हुआ? 1 इज लेस देन स्क्वायर ऑफ 2, सच है बात ये, इज इट हियर? फिर हमने क्या ले लिया? 2 3 ले लिया, इज इट हियर? तो हियर व्हाट? 2 लेस देन 3 का स्क्वायर, व्हाट इज द 3 स्क्वायर? 9। तो ऑब्वियसली 1 3 के स्क्वायर से शॉर्टर है, तो ये फॉलो कर रहा है, बट ऑल रियल नंबर के लिए ठीक है? लेकिन इट्स फॉर नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव। नेचुरल कॉन्सेप्ट लेकिन कुछ नंबर्स अगर हम ले लेंगे लाइक दैट, देखिए प्लीज, हाँ 2 ले लिया आपने और -1, पेटर्न प्लीज, जैसे -1 और 2, -1 और 2, तो -1 2 मीन्स -1 इज लेस देन स्क्वायर 2, सही बात है कि नहीं? ऑफ कोर्स इट इज दैट है, बट 2 1 करके देखिए आप इसे, या फिर ट्रांजिटिव एक और नंबर ले लीजिए प्लीज, 2 ले लिया आपने और इसके बाद क्या ले लीजिए आप? -3 ले लीजिए, इज इट हियर? तो व्हाट यू विल डू दैट हियर? करें स्टार्ट। तो 4 नंबर हो गए, 3 नंबर्स लेने हैं आपको, 3 नंबर्स ही आपके, -1 2 2 और -3, किसी और नंबर को ले लीजिए यहाँ पर, जैसे 2 और -2 ले लीजिए, चलिए इसको ले लिया आपने, -2 को ले लिया आपने, इज इट हियर? तो -2, तो तीसरा नंबर कौन सा आना चाहिए आपका? -1 -2 आना चाहिए, इज इट हियर?
तो क्या ये फॉलो कर रहा है? यस इट्स फॉलोइंग, कर रहा है ना? क्या ये फॉलो कर रहा है 2 लेस देन स्क्वायर ऑफ -2? यस ये भी फॉलो कर रहा है। अब तीसरा क्या है? -1 और लेस देन -2, ये हाँ यस सर ये भी कर गया फॉलो। क्यों बताइए? इंटीजर्स के लिए। लेकिन जैसे ही आप इनको क्या लेंगे, कोई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अभी आपने कितने नेगेटिव लिए यहाँ पर? हाउ मेनी नेगेटिव्स यार? इज इट? आप ऐसा कुछ करिए, इज इट यार? जस्ट लाइक ये लिए आपने 2, इज इट? या फिर ले लिए -1, या फिर यहां पर हो गया 1 और ये हो गया -2, ठीक है? 1 -2, व्हाट द 1 -2? तो 1 लेस देन स्क्वायर ऑफ -2, बोलो क्लियर नॉट? अब -2 जो लेस देन स्क्वायर ऑफ क्या, कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, -3, इज इट और नॉट? ठीक है, इज इट? या फिर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, या फिर और कोई दूसरा नंबर बोलिए प्लीज। पॉजिटिव -1, वन इज लेस देन -2 स्क्वायर, कोई और नंबर लीजिए। -2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर ले लीजिए। क्या ऐसा है? यस इट इज दिस, क्योंकि नंबर लाइन में -2 यहाँ आता है और ये +1 यहाँ आता है, तो स्क्वायर भी यहीं पर होगा, तो ये शॉर्टर है। अब तीसरा कंसेप्ट यहाँ पर इसके साथ है हमारा, इज इट यार? 1 और 1 के साथ में, तो 1 और 1 का स्क्वायर, इज इट यार दैट? क्या 1 1 के स्क्वायर से नहीं है, इज इट? तो इक्वल टू भी है, ठीक है कोई बात नहीं, 1 1 लिया इसलिए ऐसा, कोई दूसरी वैल्यू ले लीजिए आप, इज इट यार? ये से 1 2 लिया हमने, कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आप? 2 और -3, अब ठीक है 2 -3, तो व्हाट यू विल राइट हियर? 2 -3, स्टार्ट करिए 2 -3, 2 -3 मीन्स 2 इज लेस देन -3 स्क्वायर। फिर अगला क्या ले लीजिए? 3 इज लेस देन, क्या कर लीजिए आप प्लीज? 3 लेस देन +1 का स्क्वायर, होगा ऐसा? ऑब्वियसली होगा ऐसा। अब इनके बीच में सेट करना है आपको, तो क्या 2 लेस देन 1 का स्क्वायर होगा? ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉलोइंग। अब ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो फाइनली व्हाट विल हैपन टू, अगर हमें सेट को चेंज कर दूं रियल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए करिए या कोई दूसरे नंबर्स के लिए कर दो, फिर भी कुछ नहीं होते, कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा अपन, तो और ये डिफाइन नहीं कर रहा कि किसके लिए देना है अपन को, तो इट्स बीइंग गिवन ऑन दैट, तो ऐसे इंटीजर को फॉलो करना चाहिए, इज इट? नहीं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर विल नॉट स्पीक हियर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब पूरी इंटीजर क्लास की बात कर रहा है, वो पूरे क्लास की बात कर रहा है, इज इट? गॉट इट? नाउ नेक्स्ट प्लीज, अगला क्वेश्चन बन जाए किस तरह से आगे, और चेक वेदर द आर इज, नाउ check whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is set of all AB where B is A plus 1, मेंबर यहीं से लेना है, तो A के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? 1, तो B क्या आ जाएगा? 2, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है उसमें? नो। इन प्लेस ऑफ A क्या ले लीजिए? 2, तो B will what come? What the B will come? 3, तो 2 2 बिलोंग कर रहा है उसमें? नो, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज इट? नेक्स्ट, लेकिन इसी सेट पे, अब नेचुरल रियल इंटीजर नहीं है, ये इन्हीं मेंबर्स में से चुनना है, इज इट? हियर नाउ नेक्स्ट, कम्यूटेटिव कोई एक नंबर चुनिए का, A1 है 1, यस, तो 1 का रिलेशन किससे? अंडर रिलेशन, 1 का रिलेशन किससे? 2 से, तो 1 बिलोंग्स टू R, अरे 1 बिलोंग्स टू R, तो क्या 2 1 बिलोंग्स टू R कर देंगे आप? नो सर, जब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, बन जाएगा, इज इट? सिमिलरली ट्रांजिटिव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड एज A लेस देन B इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जैसे आपने स्क्वायर वाला किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। इज रिफ्लेक्सिव एंड, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर नहीं लगा, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये ट्रांजिटिव, तो ऑब्वियसली किसी भी वैल्यू को जब आप लेंगे तो खुद के इक्वल होती है वो, ये तो सभी को मालूम है, इक्वल भी होती है, और उससे मतलब क्या नहीं होना चाहिए? बस बड़ी नहीं होना चाहिए, खुद से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर या शॉर्टर, इज इट? यार तो इक्वल हो तो रिफ्लेक्सिव हो गया, एवरी वैल्यू इज इक्वल टू इटसेल्फ, एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ट्रांजिटिव हो सकता है क्योंकि A लेस देन B और B लेस देन C, तो C लेस देन A हो जाएगा, यस, तो ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि A लेस देन B,
तो b लेस देन a होगा क्या? नहीं, वो तो ग्रेटर हो रहा है। तो ab belongs to r, ba does not belongs to r, the statement is not getting true. Is it here? Clear? लिखने का तरीका क्लियर होगा। अब क्यूब में भी ऐसे ही करेंगे। Is it? चलिए लेट स्टार्ट सॉल्विंग दैट हियर। सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, ये पूरा एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर वर्कशीट करेंगे। इज इट हियर? क्योंकि हाँ, इज इट हियर? गेट इट हियर? तो चलिए लेट स्टार्ट हियर, वर्कशीट स्टार्ट करिए, निकाल लीजिए वर्कशीट और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 तक सॉल्व करिए। इज इट हियर? और कल हम इसी टॉपिक पर आपसे बातें करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।